And let's talk entertainment में हम बात करेंगे with Kamran Javed, who's a film critic, and he's come to our show after a long time because he's been very busy doing some great things, and let's hear about it. Welcome to the show, Kamran. How are you doing? I'm good. How are you? Great, great. अच्छा Kamran, हम आज आपसे basically 6-7 movies discuss करने वाले हैं जो कि E पे release होने वाली हैं, so वक्त कम है, मुकाबला सख्त है. Right? And also you've been telling me about this incredible stuff that you've been doing, going back and forth with Islamabad and making sure the film industry is not neglected in any way as well. So we'll talk about that too, right? But पहले हम शुरू करते हैं with the movie Ballerina. Okay. Shall we? Let's do. Yeah, let's do it. So what we can do is we can talk about this, and after a little while I'd like to show the trailer. Okay, no issues. So we know that Ballerina is part of the John Wick universe. And अब तो spoiler की बात है ही नहीं, but John Wick actually died in the last movie. So it's set somewhere in between. I'm not going to give out exactly कि कहाँ वो set होती है. Yeah. But you can expect the same John Wick type stuff. क्योंकि it's a big franchise. Of course it is. और ऐसे ही ख़त्म हो नहीं सकती. तो it's better to have a spin-off movie. Yeah. So Ana de Armas है. And I was very surprised to see कि it's directed by Len Wiseman. अच्छा. Len Wiseman वो director हैं जिन्होंने Underworld movies जो Kate Beckinsale के साथ आई थी, Kate Beckinsale के former husband भी. Yeah. तो he's good with action. Total Recall भी करी है. So he's a good director as in terms of action, as long as action is concerned. And John Wick में हम action ही expect करते हैं. Of course, John Wick है भी इसी तरह की movie. तो सबसे अच्छी बात यह है कि it is expected to do extremely well. Okay. In fact, ईद के ऊपर यही हमारा सबका prediction है in the industry कि Ballerina is going to do great business. Lilo and Stitch जो अब आ चुकी है, एक हफ्ता हो चुका है. मज़ेदार बात यह है कि Lilo and Stitch is actually beating Mission Impossible worldwide. No way. So इसका 450 million से ऊपर का box office हो चुका है. Yeah. Mission Impossible का 250 चल रहा है. They came out on the same day. Oh. And Mission Impossible again. Say, I'm sorry. I know that we're not covering Mission Impossible today, but how come Mission Impossible didn't do so well this time? And I haven't really been hearing good reviews from people as well, जिन्हें देखी भी है. अच्छा, my review came out yesterday and I found it. देखिए, एक होता है preconceived notion ना. मैं हमेशा कहता हूँ कि जब फिल्म देखने जाए ना, preconceived notions के साथ ना जाए, क्योंकि they play against the movie. तो मिशन इम्पॉसिबल के साथ भी ये हुआ था. आई लाइक्ड इट वेरी मच. फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा कुछ मसला था कि आप बार बार पिछली फिल्म्स को रेफर कर रहे थे. तो उसकी वजह से यू आर टेकन लिटिल आउट ऑफ इट. सेकंड बात जो हर किसी ने हर मूवी नहीं देखी हुई होती पर वो बैकफुट पे चला जाता है. एग्जैक्टली. आई वुड. यस, होता ही है. अच्छा, एक और भी चीज़ हो जाती है इसके बाद कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो. इफ़ यू आर जस्ट एक्सपेक्टिंग एक्शन 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 ना, दैट्स नॉट गोइंग टू लैंड वेल. Of course, इस बार जो टॉम क्रूज ने एक अच्छी बात करी है कि ही इज़ मेड ऑल द स्टेक्स very personal, very emotional. All the stakes are with characters. सही ना, rather than कि ये इवेंट हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है. It's something that is happening directly to the characters. Okay. तो वो एक डिफरेंट बना है इस फिल्म के अंदर. There's something different about it. प्लस साथ साथ एक और बात भी आ जाती है कि मैक्सिमम आपके एक्शन सीक्वेंसेस इस बार गैजेट बेस्ड नहीं है. So it's all physical in the sense that most things are analog. Yeah. They've gone back to Indiana Jones time or what? So sort of like. Oh, okay. So I haven't seen the movie. Go and watch it because it's a different experience and it's a better experience. Yeah, my dad saw it and he didn't like it a lot, so I was like, why bother? No, it's good. Acha? Chalo, okay, fine. And to khair, coming back to this, so Ballerina again. Ballerina is expected to do quite well at the box office. उसके अलावा आपके पास Lilo and Stitch भी करेगी और Mission Impossible भी करेगी. अच्छा. क्योंकि Mission Impossible का again one, I don't know why we're coming back to Mission Impossible. मगर first day का जो मेरा शो मैंने देखा, वो मैंने सुबह 4:30 बजे का देखा है. Oh. And that was 70% houseful. Oh, Newplex Askari के अंदर 7 screens were full. At 4 in the morning? No. At 4 in the morning there were 2 screens that were 70% full. और दिन भर के अंदर Friday first day के अंदर 7 screens, each screen had 5 shows. They were running consecutively. Housefuls थे. मुझे 9 बजे का शो नहीं मिला, 10 का नहीं मिला, 11 का मिला. मैंने कहा कौन सा मिलता है, तो सुबह 4:30 मिलता है. People were that driven by it? Yes. So and the box office is still very strong. तो मुझे यही expectation है कि Mission Impossible and Lilo and Stitch and then Ballerina are going to be the heavy hitters this time around. Okay, great. Okay, got it. Ballerina हमने कर लिया. And what about Karate Kid's Legend? ओके, सो एक अच्छी बात है कि कराटे किड की एज अ फ्रेंचाइज आप अगर सोचें हिस्टोरिकली, तो फर्स्ट मूवी सही है, सेकंड मूवी, थर्ड मूवी, और उसके बाद फिर फ्रेंचाइज ज़रा सी बैठ गई ना. एंड देन इट स्टार्टेड टू रीइन्विगरेट, सही है, क्या कहते हैं, विद द फीमेल कराटे किड लेटर इन द 90s. वो भी इतनी नहीं हुई. देन इट जस्ट डाइड. देन एक काफ़ी अर्से पहले जैकी चैन के साथ एक रिवाइवल हुआ था विल स्मिथ के बेटे जेडन स्मिथ के साथ. या. सो दैट
brought the Karate Kid back into the fold. Then Cobra Kai के नाम से एक टेलीविजन सीरियल नेटफ्लिक्स पे चल रहा है. That is again मेन कैरेक्टर जो Ralph Macchio का है वो इसके अंदर आ गया है, तो that took it to another level. Now this is like merging all the worlds together. Cobra Kai, सही है, Jackie Chan from the last Karate Kid. It's too much of a mix. Do you think so? I don't think so. I mean, it's how do you make it unique? That's the main question. No? So you get Ralph Macchio, who is the main lead of the original Karate Kid. Okay. And a part of Cobra Kai. Okay. And then you have Jackie Chan. And it's sort of like mixing those and those two characters, training a new one. I think that should be unique enough to bring the people. To bring the people in. तो लोग आएंगे, देखेंगे, सही है, मुझे उम्मीद है कि इसका बॉक्स ऑफिस अच्छा होगा, मगर कितना अच्छा होगा ये नहीं कह सकते. ये नहीं पता. But I think there've been mixed reviews about this. People are generally saying कि उसका बहुत ही एक lack of depth भी था character के अंदर. I don't know. I mean, this is what I read, so I really don't know. Would you agree that there was a lack of depth and बहुत ही? Well, I'll have to see the movie to say that. मगर the problem with most blockbusters is कि आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं और कभी कभार आप सिर्फ नंबर्स और ऑडियंस को कंपनसेट करने के लिए कि ये टाइप की ऑडियंस हमें चाहिए, इनको कैसे घेरे, इसको कैसे घेरे, तो यू मिस आउट. You kind of miss, you dilute the entire story just because you're catering to people, right? Unfortunately ये होता है, हर एक होता है. But they all want to make money, right? Well, all of them. Fast and the Furious is the biggest franchise there is. Yeah. And it's quite dumb. in every sense of the word. चाहे आप intellectually कहें, चाहे आप वैसे कहें, सही आप, मगर they know how to cash in. किसी ने मजाक करा था कि भाई ये तो अगली फिल्म के गाड़ी लेके चांद पे चले आएंगे, वो गाड़ी लेके चांद पे चले गए. That's not saying कि भाई स्टूडियोज को अंदाजा नहीं है. They know exactly what works and sometimes you have to dumb it down. So unfortunately that's part of the business. It is part of the business. That's true. अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे हुद्दाम 5 की. Okay, so. It's a horror movie, right? Yes, it's a horror movie. It's a Turkish horror movie. It's a Turkish horror movie. So एक बड़ी लहर है पिछले 1-2 साल से horror movies की. I know, I noticed as well. Even seasons on Netflix have become very horror based. आप अगर Netflix अब तो पाकिस्तानी मूवी भी horror बन रही है, दीमक, जो हम बाद में कवर करेंगे. Exactly. So the problem is कि Netflix के ऊपर भी आपको बहुत सारी horror movies दिख रही हैं. Turkish भी हैं, Indonesian, Malaysian बहुत है. And the Indonesian, Malaysian filmmakers are quite good at delivering low-budget, good horror movies. In fact, इसी लिस्ट के अंदर हमारे पास सिचिन पार्ट 8 भी है. वो 8 फिल्में आ चुकी हैं in the last 10 years. सही है ना? और शायद 10 years से कम के अंदर. तो हर साल एक सिजन आ रही है और एक सिजन आपके पास क्या कहते हैं इंडोनेशिया की भी आई हुई है, मलेशिया की भी आई हुई है. So what does Sitchin mean actually? It's a Turkish word. Jinn. It means jinn. Okay. So वहाँ की भी आई हुई है and that film was much better than the Turkish original. हुद्दाम भी यही है. It's part 5. I haven't seen the first part 4 क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऐसी कोई franchise exist करती है, मगर अचानक पाकिस्तान में लहर आई हुई है और these films are cheaper to get here. Okay. और क्योंकि कॉस्ट इतनी नहीं है और बॉक्स ऑफिस पे डिसेंट इनफ बिजनेस कर जाती हैं, दे कीप द ऑडियंस रिटर्निंग. तो बट वुड यू वॉच अ हॉरर मूवी ऑन ईद? हाँ, इट डिपेंड्स. क्योंकि मोमेंटम काफ़ी बना हुआ है तो पॉसिबली पिछली ईद के ऊपर भी कुछ हॉरर फिल्म्स ने अच्छा बिजनेस करा है. अच्छा. जैसे लास्ट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लास्ट ईद के ऊपर एक हॉरर मूवी आई थी दैट डिड द बेस्ट बिजनेस आउट ऑफ ऑल ऑफ देम. तो इसका मतलब व्हिच वन वाज दैट? I'm forgetting the name. Okay, cool. So, but यही आ रही है आपके पास. जैसे एक कॉप्स विस्परर आई थी, एक कॉप्स वॉशर आई हुई थी, that did business quite well. आपके पास सिजिन का पार्ट आया हुआ था again. तो अच्छा चल रहा है. But what about this one? This particular one, I'm not really that fond of from the trailer. अच्छा. क्योंकि मुझे फिल्म के अंदर कोई पोटेंशियल इतना नहीं दिखा. Okay. It looks decent enough, but at the same time it looks very low budget. बहुत सस्ती दिख रही है. अच्छा, टर्किश हॉरर मूवीज़ और बाकी हॉरर मूवीज़ इंडोनेशियन, मलेशियंस के अंदर एक बड़ा डिफरेंस होता है कि टर्किश वंस लुक अ लिटिल मोर चीपर, ऑन द चीपर साइड, एंड इट बिकम्स अ लिटिल मोर गिमिकी. हम बात कर रहे हैं कामरान से अबाउट सम मूवीज दैट एक्चुअली बी कमिंग आउट ऑन ईद. एक्चुअली हम इधर उधर बाकी मूवीज भी डिस्कस कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट. अच्छा, एंड बिफोर गोइंग फॉर ब्रेक यू वर टेलिंग अस अबाउट हुद्दाम. So हमारी बात ये हो रही थी कि you were asking कि do these movies work, and part 5 है, तो obviously part 4s आ चुके हैं, 1, 2, 3, 4, so they're working. Actually, you were comparing the Turkish and Indonesian horror movies and how the Turkish ones look cheaper.
Yes, they do. हाँ, yeah. तो अब I don't really understand why this is happening, क्योंकि टर्किश सिनेमा, टर्किश ड्रामा, सही दे टेक्निकली बहुत अच्छे हैं लोग. Yeah. तो अच्छा, इंडोनेशियन मलेशियन भी बहुत अच्छे हैं, सही है. Yeah. तो बिल्कुल. आई थिंक क्या कहते हैं, अप्रोच का डिफरेंस होगा. कभी कभार आपका ये भी हो जाता है कि हाँ यार, दिस इज़ अ सस्ता जॉनर, तो जितने पैसे बचा के कर लें, जितने जल्दी कर लें, और फिर जब आपकी फिल्म हर साल एक रिलीज़ होती है, ये एक ट्रेंड दोनों जगह बन गया है कि हॉरर फिल्म्स दोनों कंट्रीज बहुत तेज़ी से बना रहे हैं. तो जब आपके पास एक साल से कम प्लानिंग होती है, इट्स सॉर्ट ऑफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द एंटायर क्रिएटिव प्रोसेस, प्रोडक्शन भी, ये भी. बिल्कुल. सिजन के फॉर एग्जांपल मैं ट्रेलर देख रहा था, हुदाम के तो मैंने ज़्यादा देखे नहीं, पार्ट 8 तक के मैंने सारे ट्रेलर देख लिए. एंड प्रोग्रेसिवली कुछ जगह ये ऊपर जा रही है और कुछ जगह प्रोडक्शन वाइज बहुत डाउन जा रही है. अच्छा. तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सही है, दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक बिकमिंग अ फैक्ट्री लाइक प्रोसेस. तो फिर इसमें तो कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं. एंड देन डिड दे मेक मनी दिस टाइम दो? ऑल ऑफ दीस पार्ट 8 ईद पे आ रहा है, तो पता नहीं चलेगा. अच्छा, बट यू नो फ्रॉम व्हाट द रिव्यू दैट आई हैव बीन हियरिंग इज कि वो आई थिंक एंड पिछली वाली जो थी उसका एंड में होल आ गया था मूवी के अंदर, स्टोरी लाइन में डिटेल्स पे कॉम्प्रोमाइज कर दिया था उन लोगों ने, और स्टोरी लाइन ओरिजिनल भी नहीं थी. अनफॉर्चुनेटली ना ये होता है. अगेन जब प्रेशर आपके ऊपर लगता है टू डिलीवर समथिंग हर साल, और छोटी सिनेमा की इंडस्ट्री हो, तो फिर आप क्या करें? बहुत सी दफ़ा बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, पर सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि आपके पास एक अच्छा थिंक टैंक नहीं बैठा होता. तो थिंक दिस आउट कि हाँ भाई, यहाँ हमसे ये गलती हो गई, ये हो गई. पीपल इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हॉलीवुड एक ऐसी मेच्योर इंडस्ट्री, और अनफॉर्चुनेटली इंडिया भी है, कि जहाँ प्रेप पे बहुत काम होने लग गया कहानी के ऊपर कि भाई हाँ सही है, हम ये छोटे छोटे भंड ना करें. वो वर्ल्ड वाइड नहीं होता. जापानीज फिल्म्स के अंदर भी बहुत ऐसे मसले आते हैं. अच्छा. चाइनीज फिल्म्स के अंदर भी जापानीज मूवीज वुड बी सो थॉरो. नहीं, जापानीज सिनेमा कुछ साल पहले ही बहुत बेहतर हुआ है, नहीं तो अदरवाइज दे वर मोस्टली BTS सिनेमा. आपके पास चाइना का सिनेमा पिछले 10-15 साल में उठ के अच्छा हुआ है, मगर अभी भी इनकी कहानियों के अंदर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं. आप रेगुलर फिल्म्स देखते हैं तो एक प्रोसेस होता है. फिर साथ साथ एक कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी भी होती है कि आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ प्रोडक्ट से चले जाते हैं, तो आप कहते हैं अच्छा चले जाओ, ऑडियंस भी कहती चलते रहें, तो बस उसमें होता रहता है. कहते क्वालिटी देखने की हॉलीवुड की देख लेंगे. अच्छा, अब हुदाम 5 के अंदर मेरे लिए तो कोई एक्चुअली अपील नहीं, शायद ऑडियंस के लिए हो, क्योंकि इट लुक्स वेरी चीप एंड वेरी गोरी एट द सेम टाइम. तो गोर भी आपको थोड़ा सा दिखा. मगर हैरत की बात यह है कि जिन 3 के नाम से भी एक फिल्म है. या जिन 3, आई वाज गोना कम टू दैट नाउ. एंड जिन 3 इज अ बांग्लादेशी हॉरर फिल्म. You got a mixed bag right now. And it's about jinn entities basically interacting with humans. So it's jinn, हुद्दाम, आपका even क्या कहते हैं, सिजिन एंड दीमक. तो आपके पास हर जगह जिन है, क्योंकि these are all Islam based, religion based से करीब हैं. सही है, सब आयतल कुर्सी पढ़ेंगे और चारों कुल पढ़ेंगे और जिन भाग जाएगा. तो इसके अंदर यही होता है कि आप जिनों के अलावा जा नहीं सकते. थोड़ा सा वुडू चले जाएंगे, थोड़ा सा किसी और चीज़ पे चले जाएंगे, इससे ज़्यादा जाएंगे. Basically supernatural forces only. Exactly. Do you think it's saying something about the sentiments of those places as well, or is it just something that they're making because of the fact कि बिक रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, या लोगों के nerves इतने, why do you watch horror movies? कभी अगर हम psychology पढ़ें तो हम इसे देखते हैं because खुद की ज़िंदगी इस तरह की होती है कि you really want to escape from it, right? You want to go into a world that is so supernatural that you got transported in that movie for a while. क्या आपको लगता है कि लोग इतने ज़्यादा टेंस रहना शुरू हो गए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कि वो उस तरह की मूवीज़ प्रेफर करते हैं? एज अ फिल्म क्रिटिक, you've seen so many movies being produced for so many years. Do you feel like अभी एकदम से बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ बनना शुरू हुई हैं because of this reason? अच्छा, ये तो एक रीज़न हो गया, सही है ना. आपके पास हॉलीवुड की तरफ से भी हो गया, 80s में भी था, 90s में भी था. हॉरर मूवीज़ 2 टाइप की होती हैं. एक तो आपके पास बड़े बजट की स्टूडियो मूवीज दैट लुक गुड, लाइक योर कॉन्जरिंग्स. That was a very good movie. Exactly, the whole franchise is quite good. Then you have the other type of movies, जैसे B grade and C grade horror movies आपके पास आ जाती हैं. 80s बहुत भरा हुआ था इनसे. लेप्रिकॉन के नाम से आपने शायद कोई फ्रेंचाइज. लेप्रिकॉन की 9 फिल्में, 10 फिल्में आई हैं. तो प्रोग्रेसिवली वर्स. अरे बल्कि उससे याद आया, फाइनल डेस्टिनेशन quite good. Quite good to say कि उसकी वो कौन सी वाली थी, पार्ट 4 था जिसके अंदर वो ब्रिज से गिर रहे थे. That was a very breathtaking scene, which वो एक एक करके सब मरते हैं. मैंने फाइनल डेस्टिनेशन अभी हाल ही में ही देखी दोबारा, and I'm a big fan of the franchise. Same. And this Final Destination Bloodlines, this is technically I think the 6th movie in the lineup, and this is
after the first one, the best. Oh, really? You would go as far as to say that? Oh yes, it was. But are people feeling the same? Yes, of course, क्योंकि इससे पहले जो भी फाइनल डेस्टिनेशन आई थी, आई थिंक 2 या थर्ड Fourth ने सबसे ज़्यादा शायद बिजनेस करा है, 279-280 million ऐसे ओवरऑल. Third was the one with the bridge? Third was the one in the playground. अच्छा. The Ferris Fourth wheel is the and one in the everything. bridge, yeah. Fourth is the one in the bridge. मगर ये third, fourth and fifth they all did about 150, 180, 200 million के करीब का. इसने एक हफ्ते में वर्ल्ड वाइड 279 मिलियन कर रहा है. Wow. And it's still young. It's going to have 2 more weeks. 2 more weeks, yeah. I haven't seen it yet. 300-400 हो जाएगा. एंड दिस डायरेक्टर जैक लिपोफ्स्की नाम है. इनको मैंने सबसे पहले काम देखा था एक शॉर्ट फिल्म का एक सेगमेंट था. इनफैक्ट जब रियलिटी टेलीविजन 10-12 साल पहले बहुत स्पीड से नहीं आया था, तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक शो प्रोड्यूस करा था, इसका नाम था ऑन द लॉट. अच्छा. तो उसके अंदर ये नए फिल्म मेकर्स, जवान फिल्म मेकर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स लेके आके एक रियलिटी कॉन्टेस्ट बनाया था वेयर दे कुड मेक शॉर्ट फिल्म. और एक स्टूडियो होगा वो उनकी फिल्म अप्रूव करेगा. तो बेन एफ्लेक इसके अंदर वन ऑफ द जजेस थे एंड मैट डेमन. अच्छा. तो इसके अंदर ये डायरेक्टर जैक लिपोफ्स्की, इसने एक शॉर्ट फिल्म करी थी एंड ही वाज इन द रनिंग फॉर अ गुड वाइल. बड़ा इंजीनियस था. इट वाज द वन दैट स्टूड आउट द मोस्ट. तो इट्स गुड टू सी हिम रिटर्निंग एंड डूइंग समथिंग, क्योंकि छोटे वहाँ से होके फिर he did a lot of sci-fi channel, B-grade stuff. हम डिस्कस कर रहे हैं ईद रिलीजेस एंड यू नो नाउ दैट वी बीन कवरिंग सो मच हॉरर, हमने सोचा व्हाई नॉट डिस्कस द हॉरर दैट्स रियली टेकिंग यू नो कराची particularly by storm, because कल I think premiere भी था दीमक का, right? And I believe Samina Pirzada has acted quite well in it, because you know when we saw the trailer, in fact हम अगर आप चाहें तो ट्रेलर दिखा भी सकते हैं, but I'd rather have your expert opinion on दीमक. And Love Guru as well. Let's discuss दीमक first. Okay. So अच्छी बात है कि दीमक का क्योंकि ओरिजिन थोड़ा सा मेरे सामने ही हुआ था. एंड अच्छी बात यह है इस मूवी के अंदर कि अगेन हॉरर इज अ हैपनिंग जॉनर. तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते? अभी कुछ दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो मुझसे सवाल ये करा गया कि भाई डू वी मेक गुड हॉरर मूवीज़? मैंने कहा यार द प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर हर फिल्म हॉरर होती है. तो जितनी फिल्म हम पाकिस्तानी सिनेमा की देखते हैं, बीइंग क्रिटिक्स, हर मैक्सिमम क्रिटिक्स तो वो भी इग्नोर करते हैं. छोटी हर बड़ी फिल्म देखनी चाहिए. एंड कॉमेडी फिल्म कॉमेडी नहीं होती, ऑफ कोर्स. रोमांटिक फिल्म रोमांटिक नहीं होती, एक्शन फिल्म एक्शन नहीं होती, हॉरर फिल्म हॉरर नहीं होती. तो इट्स गुड टू सी कि एटलीस्ट अगर बिल्कुल हॉरर नहीं है तो बाकी देखिए सिजन विजन भी जो होगी वो absolute horror नहीं होती. Of course. So again, there's one thing known as psychological horror as well that people don't understand. If you're sitting at the edge of your seat and if you're tense, तो वो horror ही हुई. Exactly. लोगों को horror यहाँ पे लगता है कि gruesome होना जरूरी है. That's not necessary. And gore, and the third thing is कि they are into jump scares. Jump scare का घू आ गया तो. Yeah. काफी साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सिया 2013 में. That was the film that started the whole revolution of cinema in Pakistan 2013. I think I've heard of it. तो सिया के अंदर एक मेरे साथ बच्चा देख रहा था एंड फिल्म के ट्रेलर के अंदर एक जंप स्केयर आता है, वो डर गया. अच्छा, तो फिल्म वाज ओके, सही. उनके बाजू में इसके प्रोड्यूसर बैठे हुए तो खुश हो गए. नाउ पीपल आर गेटिंग स्कैर्ड, सही है. तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जंप स्केयर की वजह से खुश हो जाते हैं, कुछ लोग कहानी की वजह से. कहानी इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. ऑफ कोर्स. तो अच्छी बात आपने जब साइकोलॉजिकल एक बात एस्पेक्ट इसका लेके आई, दीमक में है ये. और स्पेसिफिकली इसके अंदर आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अवे, क्योंकि एक छोटा सा बिट है, अगर आप वही बता दें तो फिर इट रूइंस द मूवी. मगर अच्छी बात है कि यू गॉट फैसल कुरैशी रिटर्निंग टू सिनेमा. That is very, very important. And he's a very fine actor, you know. Faisal is a phenomenal actor. And सोनिया की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है. तो आई थिंक अगर आप हॉरर के लिए ना जाएं तो आप फैसल और सोनिया को देखने जाएं, क्योंकि they are the ones who are going to drive the movie forward. Yeah, of course. So that might be a good thing, and specifically अगर ये if it works, I'm expecting good box office from this. Okay. And what about Javed Akhtar? He's a part of the movie as well. Javed Sheikh? Javed Sheikh, sorry. गलत नाम ले लिया मैंने. तो नहीं, जावेद शेख I believe क्या कहते हैं, not everyone can make him act. तो इट ऑल डिपेंड्स. मगर जब आप अच्छी तरीके से ब्रीफ करते हैं, जैसे नबील कुरैशी ब्रीफ करता है, तो जावेद शेख डज गुड वर्क. So what did you think of his performance here though? No, I haven't seen the movie. You haven't? No. Okay. In the trailer, how does it feel? What vibe do you get? It feels okay. The movie feels okay. सही है. I believe कि I have one reservation, सही है. And जब मैं इसका रिव्यू करूँगा तब उसका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि it might
lag a little bit. Okay. शायद अब it will take its own sweet time getting to it. सही है। एक आध मेरे पास कमेंट आया था कि ज़रा स्लो जाती है। स्लो जा रही है। मगर I don't know, it all depends. Depends, yeah. मगर अच्छी बात है, देखिए एक सीरियस हॉरर फिल्म आपके पास ज़रूरी है। अच्छा कामरान, now considering we have a lot more to cover as well, quickly हम लोग लव गुरु थोड़ा सा टच करते हैं, then I'd love to talk to you about Pakistan cinema as well. So what do you think of Love Guru? I mean, briefly, Briefly, okay, so the briefest thing I can say is that this is going to be the last big budget film that you're going to see. क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा में अब बड़ी फिल्म्स प्रोड्यूस नहीं हो रही। एक तो पहली बात बहुत एक्सपेंसिव है, लव गुरु हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव, एक्चुअली इट्स इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म दैट हुमायूं हैज़ प्रोड्यूस्ड। तो डॉलर एक्सचेंज रेट का मसला हो गया है, पाकिस्तान आप क्रू लेके कास्ट लेके जाते हैं, पाकिस्तान में शूट भी कम करिए, तो लंदन दुबई हर जगह शूट हो रही है, प्लस हुमायूं माहिरा, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स अ फ्लफ कॉमेडी। तो आपको इस वक्त एक अच्छी एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे आप कह रहे थे हॉरर के लिए हमें ज़रूरत होती है एस्केपिस्ट के लिए, साइकोलॉजिस्ट, यू नीड टू एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग। एंड इवन ह्यूमर इज द सेम, आई बिलीव। ह्यूमर इज द सेम। तो दिस इज लास्ट, बट ह्यूमर बड़ा सब्जेक्टिव होता है कामरान। It all depends. Yeah, it depends. What I find funny, you may not find funny. Exactly. So, एक अच्छा अभी अच्छी बात आपने ये कही. You remember 90s के अंदर हमारे पास क्लासिक रोमांटिक फिल्म्स आ रही थी. Yeah. And these were all feel good romantic films. एक proper romantic comedy, ना? Yeah. This is that. Ah, okay. तो आपके पास कोई It's like a winning formula. It's a winning formula क्योंकि आपके पास रोमांटिक फिल्म्स बन नहीं रही. Yeah. तो I know people who want to go and watch it regardless of whatever they say about the pairing. As a couple, I think it's a mismatched couple. But you know, people are liking it, and you know, this is my own personal opinion, obviously. Of course. And the thing is कि लोग जाके देखेंगे. Now, you know, coming to how you said कि ये आखिरी budget बड़ी से तो you know, and you've been telling me about how you've been working on this on the back end as well कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में changes आए. So tell us about that as well. अच्छा देखिए, एक चीज़ काफ़ी अरसे से हो रही है कि पाकिस्तानी सिनेमा हमें एक कांस्टेंट डिक्लाइन में दिख रहा है. Yeah. सिनेमास बंद हो रहे हैं, हमारी प्रोडक्शंस नहीं हो रही. 2018 वाज अ ग्रेट ईयर फॉर पाकिस्तानी सिनेमा बॉक्स ऑफिस वाइज. इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस वाइज साल हमें कभी नहीं मिला. और उसके बाद कोविड आ गया. उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद फिर स्ट्रीमिंग ऑन हो गई, उसके बाद ऑडियंस जो एक इन्फ्लेशन का दबाव के अंदर भी आ गए, पैसे की नहीं हो पा रहे थे सिनेमा जाने के, जबकि सिनेमा की कॉस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है. 800 रुपये का टिकट सिर्फ 1000 रुपये का हुआ है. सही है ना? मगर आपकी चीनी और दाल और सब चीज़ें डबल ट्रिपल रेट पे चली गई है. मुर्गी आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मुर्गी और आपका गोश्त का सेम रेट हो गया. तो अनफॉर्चुनेटली सिनेमा उसी जगह है, मगर ऑडियंस को अब दोबारा जाना बहुत मुश्किल हो गया. अच्छा फिर बीच में क्या हुआ कि सिनेमा के इंसेंटिव के लिए एक चीज़ अनाउंस हुई थी फ्रॉम द फेडरल साइड, which was a grant for filmmakers. अच्छा. तो I've been in one of the core committees of that group, in fact rules committee के अंदर भी, and हम सब की think tank, हम लोग जो सब movers and shakers of the industry थे, क्योंकि इसमें सब movers and shakers आ गए थे along with the Ministry of Information. तो हमारी कोशिश ये थी कि भाई पाकिस्तानी सिनेमा को हम लोग वो बेल आउट दे दें जिसकी वजह से पाकिस्तानी सिनेमा दोबारा खड़ा हो जाए. of course. अच्छा पिछले 2-2.5 साल के अंदर कुछ भी नहीं हुआ इसके ऊपर. हमारी विद द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज़ हमने कोशिश कर लिया. ऑफ कोर्स हम फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज़ होते हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती. मगर पंजाब में एक फिल्म फंड लॉन्च हो गया. अच्छा, हाउ इनक्रेडिबल इज दैट. सो द बेस्ट थिंग इज कि जो फेडरल का फिल्म फंड था दैट स्टार्टेड विद मरियम औरंगजेब, एंड व्हेन शी लेफ्ट एंड शी केम टू पंजाब, तो शी स्टार्टेड दैट सेम थिंग, दैट केम आउट. सिंध में फिल्म फंड आ गया. अच्छा. एंड अब अचानक देखेंगे कि पंजाब के थ्रू एक एंडाउमेंट मिलने वाली है फिल्म मेकर्स को, जिसकी वजह से a lot of more films are going to get made. How lovely is that, Kamran? And I think that's a great news that we needed to hear for, you know, before we end the... सबसे अच्छी बात ये है कि I'll just take a minute more from sure. कि पंजाब का और सिंध का तो आएगा ही, फेडरल वाले में दोबारा एक इनिशिएटिव हो रहा है. सही है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज टेकन नोटिस ऑफ दिस. अच्छा, एंड दैट विल चेंज द लैंडस्केप इन अ रेडिकल वे. अमेजिंग. तो होपफुली अगले 1 साल अगर आपके पास कोई बड़ी फिल्म नहीं आई तो 2 या 3 साल के बाद ऐसा हो सकता है अगेन अंडर द प्राइम मिनिस्टर एक चीज़ होना, प्राइम मिनिस्टर का नोटिस होना, इट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग.